सबको लगता है कि मैं ड्यू से हूँ बिकॉज मेरा सर्कल पूरा ड्यू से है, तो एंड ऑल्सो मेरे आई मुझे भी पहले यही लगता था। हाँ, क्योंकि सबको यही लगता है, इवन एलएसआर वाले लोग राइट है ना, राइट करेक्ट दे डोंट कंसिडर बिग फोर एज अ गुड कंपनीज करेक्ट। ऑनेस्टली, क्योंकि ना वो पैकेजेस कम देती है हमें, सबको पता है बिग फोर कम ऑफर देती है। ऑनेस्टली हाँ, यस। बट हमारे लिए दे आर ड्रीम या कंपनीज। एंड तुम्हारा सब्जेक्ट सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल वंशिका जिंदल फॉर दिस पोजिशन आई इवन ट्राइड राइटिंग अर्जेंट एज अ सब्जेक्ट, तो आई डोंट नो इफ दैट वर्कड और नॉट, अमेजिंग अमेजिंग। आई बट थिंक इसमें भी बहुत टाइम लगता है, लोगों को लग रहा होता है रेफरल मिल गया इट्स फाइन फॉर हर, बट आई थिंक रेफरल कैन जस्ट हेल्प यू गेट अ इंटरव्यू कॉल, बिकॉज काफी लोगों का ये मिथ होता है कि रेफरल्स कैन गारंटी यू अ जॉब। जॉब, दैट्स नॉट दैट्स हाउ नॉट इट ट्रू इज। राइट। आई नो अ पर्सन जो रेफरल से ही आया था थ्रू अ डायरेक्टर्स रेफरल, ओके डजंट मीन कि ही डिड लैंड राइट। अ जॉब, वो रिजेक्ट हो गया था। Hi guys, welcome back to my channel Truly Simriti. So in the third episode of Simplify with Simriti, we have been joined with Vanshika Jindal, who has more than 60,000 plus followers on LinkedIn, and she has also secured an off-campus offer letter from KPMG, the Big Four. She is now currently working as a risk analyst at KPMG, and she has got the job offer only from the off-campus opportunity. So, if you are someone who is looking for how to approach people for referral, what is the right approach to approach the right kind of people for a referral to secure a off-campus opportunity at the Big Fours or any company, Vanshika is the best person to look out for. And in this episode, she has shared valuable insights on her LinkedIn journey from 0 to 60k thousand plus followers and her off campus opportunity journey, right from how was the interview process, what were the processes, what were the selection rounds, what was there in the offline interviews, and so much more, along with how she approached the right kind of people, what was her mindset, how did she prepare herself for the off campus opportunity. So, if you are someone who is looking for such information, make sure you watch this video until the very end, and of course share it with your friends so that they do not miss out on such amazing content, and keep supporting. So, let's get started. Hi Vanshika. Hi Simriti, How are you? I am great, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। Welcome to the third episode of Simplify with Simriti. Thank you so much, thank you for having me Simriti। How are you feeling? I'm feeling great, great to be here, honored to be here in your podcast। Let's see how it goes। I'm sure you'll give so much information to the audience. I'm glad Yeah. you think so। First of all, everybody should congratulate Vanshika for getting placed at KPMG. Thank you everyone। How's it feeling there? एक ड्रीम होता है ना, हाँ. सो कमिंग फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज, आई से Yeah. दिस एवरीवेयर Yeah, वेयर पॉसिबल, yeah, कमिंग फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज, कंपनीज आती हैं हमारे कॉलेज में, नॉट लाइक कि कंपनीज आती ही नहीं है, बट विद ईदर not so appropriate profile, not so appropriate company, not so appropriate package। तो right. sooner or later I realized कि तुम्हें तीनों का mixture हर जगह नहीं मिलेगा, especially from a tier Correct. 3 college। तो I got this opportunity for KPMG, ठीक है. and उसमें there were 3-4 rounds, and then we can talk about it in detail later। Right, right. Yes. So now अभी from a tier 3 college to Big Four, it has been a journey। So I would want you to tell everyone कि आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया and what was your course? Okay. First of all. So I graduated from Maharaja Surajmal Institute, which comes under IT। सबको लगता है कि मैं ड्यू से हूँ because मेरा सर्कल पूरा ड्यू से है, तो and also मुझे भी पहले यही लगता था। हाँ, क्योंकि सबको यही लगता है I'm from ड्यू। In fact, I've been to some creator meetups also ना, तो उसमें भी ड्यू में रहती है, तो सबको यही लगता है, but I'm from IT, Maharaja Surajmal Institute। I graduated with the BBA degree। Okay. So उसमें प्लेसमेंट का सीन रहता है कि देयर आर कंपनीज, मोस्टली सेल्स जो होता है। So how was your college experience? I mean, considering you said that your circle is everybody surrounding you is from DO, right? Did you ever feel like that I'm missing out or something like that? Or how was in general your college experience? Okay, so
स्टार्टिंग में ना ऐसा बहुत कंपैरिजन होता था। Yeah. सारे लिंक्डइन गुरुज बोलते हैं, इनफैक्ट मैंने भी, मुझे याद है व्हेन आई स्टार्टेड माय लिंक्डइन जर्नी था, उसमें मैं भी बहुत ज्ञान ऐसे बांटती थी कि यार कंपैरिजन मत करो, तुम Right. कंपैरिजन करके कहाँ जाओगे, बिकॉज Right. देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल बी बेटर देन यू। Correct. बट इनफैक्ट मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया कि कंपैरिजन मत करो, एंड बट सबकॉन्शियसली ना कहीं हो होता जाता था, है, हो जाता है. बिकॉज आई नो पीपल फ्रॉम एलएसआर, शहीद सुखदेव एंड ऑल ऑफ दोज Miranda's. कॉलेजेस, Yeah, हाँ, right. एवरीथिंग। तो उसमें दे ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स, एंड जो कंपनीज का हम ड्रीम करते हैं, सो आई टेल यू, जो सुखदेव एंड एलएसआर वाले Right, लोग हैं right, ना, right. Correct. they don't consider big four as a good companies, Correct. honestly, क्योंकि ना वो पैकेजेस कम देती है, हमें हम्म. सबको पता है बिग फोर कम ऑफर देती है। Honestly, yes. हाँ, बट हमारे लिए दे आर ड्रीम कंपनीज, Yeah. बिकॉज हम टियर 3 कॉलेज से हैं, तो हमारा एक्सपोजर भी वैसा हुआ है। तो पर्सनली मेरा कॉलेज का सीन ये था कि बहुत अकेडमिक सेंट्रिक कॉलेज है हमारा। मतलब आई वाज इन्वॉल्वड इन सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, है. आई डिड वॉलंटियर विद सम है. एनजीओज, एंड वो सब रहता है, सम पीओआरस हैव टू कलेक्ट। सो स्टार्टिंग में भी ये एक अप्रोच था कि सारे चेक बॉक्स टिक करना है, यू नो, आई विल बी द कूल किड जो सारे चेक बॉक्स टिक कर रही है। तो वैसा एक एक्सपीरियंस था, हर्ड बिहेवियर वाला एक्सपीरियंस था Right. फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में, तो एटलीस्ट। फिर थर्ड ईयर में एक अलग टाइप का एक्सपोजर मिला व्हेन आई स्टार्ट माय लिंक्डइन जर्नी, Right. व्हेन मैंने थोड़ा ऐसा अपना थॉट प्रोसेस किया कि चलो इंटर्नशिप करनी है, तो वो सिर्फ रेज्यूमे के लिए इंटर्नशिप नहीं करनी है, आई हैव टू डू इंटर्नशिप्स फॉर एक्सपीरियंस, फॉर Right. एक्सपोजर, फॉर नेटवर्क एंड एवरीथिंग। तो एक वो थॉट प्रोसेस हुआ। बट इफ आई हैव टू सम अप माय कॉलेज जर्नी, तो उसमें आई थिंक इट वाज डिसेंट, बट यू नो एक सबकॉन्शियसली होता है कि आई एम्ड फॉर दिस बट आई डिडंट गेट इट, Yeah. तो मुझे इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, बट ऑल इन ऑल इट वाज गुड। When you connect those dots back, it all feels worth it. Exactly, yeah. Right. I rejected an offer, तो luckily after a month or so, तो मेरा KPMG में रेफरल है, Okay. तो उस रेफरल से ना काफी टाइम से बात चल रही थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आजकल यू नो सब ऐसे बोलते हैं कि इस पे ट्रस्ट मत करो, उस पे ट्रस्ट मत करो, अगर इवन इफ यू टॉक टू समबडी अबाउट योर रेफरल, तो पक्का नहीं होता कि वो रेफर करेगा, एंड बिल्कुल. सम पीपल इवन टेल यू कि उन्होंने रेफर कर दिया, बट वो Right. करते नहीं है। Right. तो एक वो भी था कि ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं फिर बीच में, तो बट लकीली यहाँ पर बात बन गई, एंड देन आई गेव पूरे 4 इंटरव्यूज राउंड्स, एंड 4 देन आई interview गॉट round. इन। यस। So 4 interview round थे, उसके पहले भी कुछ procedure हुआ होगा for sure, no? No, so it was like पहले HR round था, it was a ठीक है. short sweet round जिसमें ठीक है. behavioral questions होते हैं, and then there was aptitude round where quants question were there, verbal, logical reasoning and financial accounting questions थे, वो तो with respect to your profile specific होते हैं, so Right. either if you are in tech तो tech related questions Right. पूछे जाएंगे तुम्हें। Right. Then came the technical round जिसमें typically manager or your team leader takes that interview, जिसमें job specific questions थे, तो all the technicalities were there and everything. Then lastly it was face to face round, Okay. where I went in KPMG face to face, and then typically director or associate director takes an interview, so that was more interactive and engaging, and पूरा final round वो था, I was very nervous कि face, because I haven't appeared for face to face इससे पहले। अच्छा, तो जो लास्ट राउंड था फेस टू फेस था, उसके पहले के राउंड वर ऑनलाइन और सारे वर्चुअल थे। Okay. फिर फेस टू फेस मेरा वो था, आई वाज वेरी नर्वस कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आई रिमेम्बर कि मैं अम्मा को बोल रही हूँ मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे, मेरी वो ठीक नहीं लग रही, सब कुछ बहुत हसल वसल था उस टाइम, बट हो गया सब कुछ। एंड मैंने फीडबैक लिया तो उन्होंने बोला कि हाँ यू वर अ गुड कैंडिडेट ऐसे करके, तो दैट्स हाउ आई गॉट इन। अच्छा अच्छा। सो टॉकिंग अबाउट रेफरल्स, यू सेड दैट यू like got the interview call because of a referral. So I think आपको भी शायद कभी ना कभी आते होंगे, मुझे भी आते रहते हैं कि बिग फोर में रेफरल कर दो। I mean people I think make a huge mistake while sending the message to the person. I think वो कुछ नहीं देखते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो just come into the DMs and they keep saying hi Di, can you please refer me for this position, because I think वो वाले messages जो होते हैं वो ignore होते हैं most of the times. कोई ही reply करेगा, because if you're just you know texting a one line message to the person and that too just for your own sake कि refer कर दो भैया दीदी जो भी करके, है ना, I think वो ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। तो वो क्या आपने अप्रोच रखा था while you were approaching people for referrals, and
what do you think कि उसमें different था? Hmm. What made you stand out basically? ओके सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं Right. आफ्टर यू गेट इन इवन आई गेट मैसेजेस हाय दी आई एम लुकिंग फॉर जॉब मैंने Yeah. कहा ओके गुड फॉर यू क्योंकि नो कॉन्टेक्स्ट Right. रेज्यूमे तक नहीं भेजा हाउ वुड आई हाँ. गेट टू नो व्हाट टाइप ऑफ एक्सपोजर you have had Exactly. during your college years and everything so I reach out to many people so I tried for referrals in many companies like Barclays Yeah. Citibank and Yeah. everything तो उसमें one thing I do is मतलब I prefer and avoid to reach out on LinkedIn because LinkedIn के DMs ना many time people tend to ignore firstly Right. and अगर कर भी दिया तो वो आलस दिखाते हैं कि Right. नहीं बाद में करेंगे because Miss I out हो know जाते हैं. हो हाँ जाते हैं. because I know मेरे साथ यही होता है तो मैं भी ये ऐसे ही करती हूँ ठीक है तो I prefer कि पहले उनकी ईमेल ढूंढो कहीं से ठीक है सो देयर आर मेनी पीपल जो HR ईमेल्स वगैरह दे रहे होते हैं उसमें भी आई प्रेफर कि मैं HR को ना करूँ रीच आउट हाँ. बिकॉज ऑब्वियसली देयर DMs एंड ईमेल्स आर ऑलरेडी Filled up. फ्लडेड विद सो Yeah. मेनी मैसेजेस तो मैं HR का भी नहीं करती ऑल्सो आई थिंक जो एंट्री लेवल पोजीशंस होती है एनालिस्ट एंड वो सब वो रेफर तो मैं कर सकते हैं बट आई फील दैट जो डायरेक्टर एंड पार्टनर लेवल के पीपल हैं उनसे अगर तुम रेफरल कर सको तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है तो आई हैड रेफरल फ्रॉम दैट ओनली तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है मतलब एंट्री लेवल में भी तुम कर सकते हो बट सो तुम्हारी ईमेल कंसाइज होनी चाहिए मैनी Right. पीपल कवर लेटर पूरा वो ईमेल में करते हैं ऑल द 3-4 पैराग्राफ दैट इज नॉट फीजिबल बिकॉज नोबडी हैज टाइम टू रीड इट राइट एंड तुम्हारा सब्जेक्ट सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल वंशिका जिंदल फॉर दिस पोजिशन आई इवन ट्राइड राइटिंग अर्जेंट एज अ सब्जेक्ट तो आई डोंट नो इफ दैट वर्कड और नॉट बट आई ट्राइड दीज टाइप ऑफ थिंग्स तुम कर सकते हो ट्राई एंड ऑल्सो तुम्हें फॉलो अप जो थिंग होता है फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉरवर्ड तो अगर तुम लेट्स से 2 weeks का तुमने कूल ऑफ पीरियड दिया है एंड देन यू कैन टेक अ फॉलो अप कुछ लोग होते हैं आई रिसीव अ DM उसमें दैट पर्सन वाज सो लाइक कि रिप्लाई करो एंड Spam कर रहा था मे बी. हाँ स्पैम कर रहा था वो तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स तुम्हें प्रॉपर एक पीरियड के बाद फॉलो अप करना होता है एंड उस प्रीवियस ईमेल को तुम्हें रेफर करना होता है दैट आई सेंट यू दिस ईमेल सेइंग दिस तब जाके वो थोड़ा प्रोफेशनल डेकोरम एंड ऑल द कोड ऑफ कंडक्ट जो मेंटेन करना होता है बिकॉज यू टॉकिंग टू अ डायरेक्टर और अ मैनेजर यू हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम तुम ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ ये है और रेफर कर दो मेरे को Yeah, correct. हाँ तो उसको वो पूरा रखना होता है तो आई ट्राई टू रीच मैनी पीपल जिसमें से आई डोंट नो व्हाट वर्कड व्हाट नॉट बट लकीली KPMG वाला वर्कड एंड दैट्स व्हाट इज अमेजिंग आई थिंक इसमें भी बहुत टाइम लगता है लोगों को लग रहा होता है रेफरल मिल गया इट्स फाइन फॉर हर बट आई थिंक रेफरल कैन जस्ट हेल्प यू गेट अ इंटरव्यू कॉल बाकी तो आपके स्किल्स पे आपका कितना कॉन्फिडेंस है व्हाट ऑल यू नो राइट उस पे ही डिपेंड करेगा है ना बिकॉज काफी लोगों का ये मिथ होता है कि रेफरल्स कैन गारंटी यू अ job that's not how it true, is right? I know a person जो referral से ही आया था through a director's referral doesn't mean कि he did Right. land a job वो reject हो गया था उस job में because उसका interview अच्छा नहीं गया था that's simple तो वो referral से भी reject होते हैं लोग Right. उसके बाद उसने किया तो फिर हो गया but then referral से भी reject होते हैं लोग लोगों को Exactly. लगता है कि referral है it has been easy for her it's not like it that is not for sure it is not like that तो थोड़ा इंटरव्यू लाइक नॉट इंटरव्यू बट पूरा का पूरा प्रोसीजर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं एक बार KPMG का ऑफ कैंपस क्या जो था आपका Okay, so typically it has 4 rounds. So first HR will reach you कि we are scheduling your interview and so on. तो एक HR round होगा. That was just a 15 to 20 minutes conversation जिसमें behavioral questions थे around your internships, all about your resume basically. A situational question था एक कि अगर team में आप होते हो तो if you क्या था I don't remember but exact कुछ team का ही था कि if you disagree with study वगैरह
It should be like that, no? I think मेरे को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि if you have been faced with a difficult team member and आपका कुछ project urgent deadline है, how would you deal with such a team member and how would you make sure कि आपका project smooth जाए? Something like that? Yeah, something like that. And also कि अगर if you have been given two deadlines which कौन सा आप ज़्यादा urgent treat करोगे, and if you have to submit by EOD today both the deadlines, what will Okay. you do and everything. So all the behavioral questions are there in that round. Yeah. So after you clear that round there is an aptitude test Okay. जिसमें quants के questions होते हैं, all the maths questions, all the verbal questions are there, all the logical reasoning questions are there. In my case there were ethic questions also, business ethics questions and financial accounting questions. So after that, after you clear a certain cutoff, you are faced with the technical round, जिसमें as I told, जिसमें manager or team leader can take your interview, जिसमें job description centric questions होते हैं, all the technicalities, all the buzzwords जो भी आपके job description में लिखे हैं, वो I read all about that, I made notes and then I appeared for the virtual interview. उसमें वो सब हुआ, and then after you clear that interview there was a face to face round जिसके लिए as I told I was very nervous and वो मेरा लिया था एसोसिएट डायरेक्टर ने. तो उसमें फेस टू फेस था वो and more engaging, all the questions you had to ask during all the rounds you can ask here. And one thing that worked well for me during all the processes to strike a conversation. Okay. It's not about them asking questions and you just answering, you have to strike a conversation. Yeah. अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि मतलब मेरा ऐसा था कि even if I knew the answer to a certain question, तब भी मैं पूछ लेती थी उनसे to strike that conversation. तो एक वो होता है कि थोड़ा interactive हो जाता है, थोड़ा और engaging होता है. तो ये एक थोड़ा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है when you are in an offline interview. Yes, I think yes. compared to virtual. Yeah. I think मुझे भी पहले लगता था कि virtual interviews easy रहते हैं, but जब मेरा EY का interview था तो भी it was virtual, तो still it felt like कि यार अगर offline होता तो you can build a connection with the other person and convey your thoughts in a more easy way. Okay. Yeah. How was your experience offline versus online का interview? Online में it is, as you said, it is very less engaging. It's like a point to point convo. Exactly. तो वो बस question पूछते हैं, you have to answer it, and वो भी ना एक ऑफिस सेटिंग से बैठ के इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो they are restricted कि हाँ इतना पूछना है, इतने टाइम में कंप्लीट करना है, क्योंकि वो टीम्स का तुम्हारे पास लिंक आता है तो 30 मिनट्स का स्लॉट होता है, 30 मिनट्स में करना है. फेस टू फेस में मेरा ये था कि वी वर गिवन अ हाफ एन आवर स्लॉट, बट मेरा इंटरव्यू 50 मिनट्स चला था प्रॉपर, तो उसमें ज्यादा एंगेजिंग था, वो ज्यादा फेस टू फेस, तो एक कनेक्ट भी हो जाता है. तो फर्स्ट डे में सबसे पहले उनसे ही जाके मिली थी, एसोसिएट डायरेक्टर से, तो एक वो थोड़ा पर्सनल कनेक्ट हो गया था. सही है. तो जब मैं मेंटोरशिप करती हूँ लाइक EY KPMG के बारे में, है ना, यू मस्ट बी नोइंग इट अबाउट इट, तो बहुत सारे लोग ना ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर इंटरव्यूअर ने ये पूछ लिया कि व्हाई ओनली KPMG, व्हाई ओनली डिलॉयट, या फिर कोई भी स्पेसिफिक टू कंपनी की सिर्फ EY या KPMG ही क्यों, लाइक हाउ डिड यू हैंडल दैट क्वेश्चन? Okay, so if it was asked, of course. It is definitely asked generally overall. मुझसे नहीं पूछा था, but general tip for this question is कि तुम्हें उस कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करके जाना है. ये एक नॉन नेगोशिएबल है कि कंपनी रिसर्च पूरा करो, तो उसका CEO कौन है, ये कौन है, सब वेबसाइट वगैरह सब all the history it has. And रिसेंट में मतलब ऐसा था कि आई वॉज अपीयरिंग फॉर दिस कंपनी कॉल्ड S&P ग्लोबल. देयर आई वॉज आस्क्ड दिस क्वेश्चन. तो रिसेंटली S&P ग्लोबल का ना एक मर्जर हुआ था, इट एक्वायर्ड अ कंपनी, ऐसे करके था. तो मैंने वो उस एंगल से बोला था कि ये कंपनी एक्वायर करी थी एंड जो भी इम्पैक्ट उस कंपनी में पड़ा, ऑल द डेटा एंड ऑल द ड्यू डिलिजेंस दैट वेंट बिहाइंड दैट एक्विजिशन, वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. तो ये वाला पार्ट मैंने कंपनी रिसर्च्ड अबाउट द कंपनी अच्छे से. Yeah. Right. So if you come across this question, my general advice is to research about the company well. And secondly, जो भी recent news है, you have to read it. And उसमें कुछ part ऐसा ढूंढो जो सामने वाले को भी interesting लग सकता है, and जो तुम्हें भी interesting लग सकता है. Correct. तुम वो वाला part बोल सकते हो. Correct. So that shows your initiative to research and also कि तुमने out of the way जाके देखा है कुछ. Right.
और द नेक्स्ट थिंग इज कि रेज्यूमेस के बारे में बात करते हैं। हम्म। ऑफ कोर्स जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपना स्कूल से लेके कॉलेज से लेके सब कुछ भर देते हैं हाँ कोई हाँ। भी जॉब इंटरव्यू के लिए। दिस इज हम्म समथिंग आई आल्सो टेल देम कि इतना टेक्स्ट हैवी बनाओगे तो ऑफ कोर्स नो वंस गोना रीड इट। यस। तो आपने अपने रिज्यूमे में क्या अप्रोच रखा एंड हाउ डिड यू नो मेक इट मोर रीडेबल फॉर द अदर पर्सन, क्योंकि ऑफ कोर्स सब कहते हैं कि एचआर्स के पास 30-40 सेकंड्स होते हैं टू गो थ्रू योर रिज्यूमे एंड यू हैव टू कैच द आई। ओके, सो रेफरल के केस में तो ऑफ कोर्स एचआर रीड करता है, बट नॉर्मली तो वो एटीएस के थ्रू जाता है एंड वो 30-40 सेकंड्स भी होनी होती है। अगर तुम्हारी एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी हुई है तो विद इन 0.5 सेकंड्स तुम्हारा रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। तो देर आर 3-4 buckets जो होते हैं: एजुकेशन, your position of responsibility, your internships or your work ex, and your extracurricular activities. These are the 4 buckets जो मैंने अपने resume में डाला था। तो जो ATS स्कोर होता है, वी ऑल नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में मेरा ATS स्कोर जस्ट 50 था, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि ATS स्कोर भी कुछ होता है, क्योंकि ऑल मुझे भी नहीं पता था पहले। ऑल थ्रू आउट इंटर्नशिप्स ना, मतलब ऐसे ही भेज दिया करती थी मैं। लकीली मेरा हो गया था वो ग्रैंड थॉर्टन में इंटर्नशिप का, बट उसके बाद आई रियलाइज कि ATS स्कोर भी करना है, नहीं तो बिकॉज आई रियलाइज कि मेरा ऑफ कैंपस नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस रेज्यूमे रिजेक्शन। तो उसके बाद जब मैंने पूरा ATS उसको फ्रेंडली बनाया, ऑल द स्पेसेस वी हैव टू कंसिडर और ऑल द फॉर्मेटिंग वी हैव टू कंसिडर, ऑल द स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो जो बज़वर्ड्स होते हैं कि स्पीयर हेडेड और वो सब उसमें भी न्यूमेरिकल्स होने चाहिए एंड द नंबर्स ऑफ कोर्स, हाँ द नंबर्स डेटा होने चाहिए उसको। एंड जो स्पेसेस हैं वो भी, मतलब मेरे को तो ऐसे OCD हो जाता था कि यार इतना स्पेस क्यों बचा है मेरे रिज्यूमे में, क्योंकि कुछ लोग का होता है कि चलो स्पेस रखते हैं हम क्योंकि हमारा ज्यादा कंटेंट नहीं है, बट आई हैड कंटेंट तो मैंने कहा मैं डालूंगी, तो मैं पूरा ऐसे फिल कर देती ताकि उसको पूरा ऐसे फॉर्मेटेड दिखता था अकॉर्डिंगली। तो दैट्स हाउ आई मेड माय रिज्यूमे। उसके बाद ATS स्कोर में देयर आर दीस वेबसाइट resume worded and so on where you can put your resume and you can check your ATS score। वेबसाइट एक बार रिपीट कर दो। resume worded is the website। तो वो मैंने चेक किया था, तो it also suggests you changes कि तुम्हें यहाँ चेंजेस करना होता है। तो एक these are words like hard working और problem solving, वो सबको यूज करते हैं, तो वो सजेस्ट करता है कि आप हटा दो इनको, क्योंकि बिकॉज रेपिटेटिव जेनेरिक हो जाता है। करेक्ट। तो वो सजेशंस देता है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक चेंजेस। तो दैट्स अ वेरी गुड वेबसाइट टू गो थ्रू। उसके बाद यू कैन चेक योर फाइनल ATS स्कोर एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई। ओके, तो यू मेंशन कि ग्रैंड थॉर्टन में इंटर्नशिप किया था आपने। आपको लगता है कि डिड इट हेल्प यू एनीवेज इन द जॉब इंटरव्यू प्रोसेस या फिर जॉब लेने में? Definitely, I think in HR round also and in the technical round also questions were there around internship and everything। तो जब भी internship का question आता है they ask me कि what was your experience in Grant Thornton। हाँ, क्योंकि we are fresher, हमारे पास internship ही है दिखाने को, work ex तो है नहीं, तो हमारे पास internship है दिखाने को। तो they ask you what type of experience was there, what all are your roles and responsibilities and everything। तो उसके अराउंड था एंड तुम्हें ना इंटर्नशिप करके यू गेट सम एक्सपीरियंस, यू गेट सम कॉन्फिडेंस। तो इंटर्नशिप्स तो आपका रिमोट इंटर्नशिप था? नो इन ऑफिस इंटर्नशिप था। यस। ओके। तो हाउ डिड यू गेट दैट इंटर्नशिप? I applied numerous times. I was rejected numerous times. Cold emails किया था मैंने, बहुत ज़्यादा cold, but नकली हो गया था and they gave me an interview and एक ही राउंड हुआ था उसका and I got it। ठीक है। I think crux यही है कि अप्लाई बहुत बार करना पड़ेगा। Of course you will be rejected a lot many times and sometimes ignorance आएगा आपके उसमें कि कोई तो कुछ लोग बहुत जो generous होते हैं I would say, वो रिजेक्शन मेल भी भेज देते हैं। दे आर टू काइंड टू सेंड इट, बट कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं, बहुत लोग नहीं करते वो। मैंने यही सोचा यार, पता है मेरा एक ना शेड्यूल बन गया था कि आज उठना है, इतनी कंपनीज में अप्लाई करना है, एक्सेल शीट आई मेंटेन कि कंपनी अप्लाई टू दिस, यस नो, प्रोफाइल ये है, ठीक है, एंड देन वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट है, वो उसका भी एक कॉलम बनाती थी मैं। तो रोज का एक शेड्यूल बन गया था एंड इनफैक्ट मैं वो एक अलग कॉलम इसका भी था कि इफ आई गेट एंड
रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, तो हम्म। उसका रिस्पॉन्स का अलग था कि रिजेक्शन आ गया या डेटाबेस में ऐड कर लिया, तो वो सब भी मैं लिख देती थी। तो एक शेड्यूल बन गया था, एंड रिजेक्शन ईमेल भी बहुत लोग नहीं भेजते, तो यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ की जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस है हैसल, बहुत स्पेशली ऑफ कैंपस ऑफ में। कैंपस तो में तो बहुत ज्यादा है। आई हाँ, अग्री टू अनदर लेवल, क्योंकि व्हाट मेरा वाज ऑन योर कैंपस एक्सपीरियंस मेरा तो ऑन कैंपस था ऑन एक्चुअली। कैंपस था? तो हाउ इज इट डिफरेंस? आई थिंक ऑन कैंपस में एक थोड़ा वो मिल जाता है एडवांटेज, बिकॉज यू डोंट हैव टू रीच आउट टू कंपनीज। राइट वो राइट। तो एक इंटरव्यू तो तुम्हें ऑफ कैंपस भी देना है, ऑन कैंपस भी देना है, ऑफ कोर्स, है ना। बट आई थिंक मुझे वो लगा कि ऑफ कैंपस में वो टेंशन ज्यादा रहता है कि इफ द अदर पर्सन डोंट रिप्लाई टू अस, और या फिर अगर इस कंपनी से भी रिजेक्ट हो गया, आई हैव टू लुक फॉर द अनदर पर्सन फ्रॉम द सेम कंपनी आइदर और सम अदर कंपनी। बट ऑन कैंपस में थिंग्स आर प्रिटी इजी, आई वुड से। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सेटिंग वैसा होता है कि तुम्हारे पियर्स तुम्हारे साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, वो थोड़ा हेक्टिक, स्ट्रेस एंजाइटी हो जाती थी मुझे उस चीज से। इनफैक्ट जब डिलॉयट का रिजेक्शन हुआ था तो उस टाइम तो मेरा अलग ही हो गया था, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इज, लाइक आई टेल यू, आई वाज इन अ केमिस्ट्री लैब, ठीक है। तो हम वहाँ पे वेट कर रहे थे जिन्होंने इंटरव्यू, सॉरी इट वाज अ ग्रुप डिस्कशन राउंड। अच्छा, जीडी का रिजल्ट आना था पहले, देन इट वाज पीआई। तो हमें एक शीट आया था जिसमें देयर वर नेम्स ऑफ पीपल हु गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड। मुझे कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि शायद नहीं हो, बट यू नो यू स्टिल हैव दिस होप कि शायद समथिंग मिरेकल हैपन, हो जाए। बट फिर नहीं हुआ मेरा। एंड उस टाइम जो फील आता है ना, लाइक यू आर सराउंडेड बाय 50 अदर पीपल, जिसमें से 25 का सिलेक्ट हो गया, एंड उन 25 में से यू हैव 2 to 3 फ्रेंड्स एज वेल। तो कितना ही कह लो कि यार you have to be happy with other people's success. Of course I am happy, and अब तो I think मैं उस चीज का regret भी नहीं करती हूँ, because where I am now is because of that thing, right? because मैंने LinkedIn भी उसके बाद शुरू किया था, because मुझे ऐसा फील आ गया था कि यार गलत हो गया है कुछ तो गलत हो गया लाइफ में। तो I think life is a lot changed because of that rejection. तो but ना you correctly said in the start of the podcast ना कि लोग बहुत कहते हैं कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद द 100 चैप्टर, बट नो, इन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। शायद हम यूट्यूब पे आके भी कह देंगे, बट डजंट रियली मैटर, क्योंकि उस सिचुएशन पे आप जो फील कर रहे होते हो नोबडी एल्स कैन अंडरस्टैंड दैट। एग्जैक्टली। तो मेरा भी वैसा ही एक्सपीरियंस था, बट आई वुड रियली अग्री ऑन दिस पार्ट कि ऑफ कैंपस ज़्यादा टायरिंग है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर करता है। आई थिंक यू डिड एन अमेजिंग जॉब, क्योंकि सुबह रोज उठ के 50 कंपनी को लेके बैठना कि कौन सी में अभी अप्लाई करना है, कौन सी में कर दिया है, इज अ रियली बिग टास्क। डेफिनेटली। सो ट्रू। Okay. So, okay, talking about LinkedIn. So, Vanshika has 60,000 followers on LinkedIn. Okay. First of all, Not yet congratulations. 60, what? Okay, जब तक ये podcast upload होने वाला है तब हो जाएगा। Okay. तो first of all, congratulations. Thank you so much. So, you started in July Yeah, 20? last year. 2023. 23 years. Yeah, we are in 2024. Yeah, right. Okay. I sometimes forget it. हाँ, कोई क्योंकि ऐसा फास्ट जा रहा है ना ये साल, it feels like यार 2025 आने वाला हो गया है। सही बात है। वही। तो in 15 months, 60,000 followers is a great thing. आपको नहीं लगता? Okay. So I'll shed some light on my journey. Okay. तो I'll tell you numerical wise अभी कि कब से कब तक what milestones I covered. Okay. So I started in July 2023. I started from about 2,000, 3,000 followers because मैं ना I was very keen on consuming content on LinkedIn. मैं रोज LinkedIn खोलती थी. I used to like, comment with people. तो मेरे को था यार कि I have to start writing. My second year was just about to end. I was going to enter in my third year. और मैंने कहा कुछ अलग करना लाइफ में, अब बहुत हो गया इंटर्नशिप में, वो कुछ अलग करना अब। तो I started consuming content actively कि कुछ विद द पर्पस कि मुझे भी आगे लिखना है। Right. तो मैंने ये स्टार्ट किया था इन मई
हाँ. तो अबाउट 2 मंथ्स ऐसे ही चलता रहा, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती रही, हैव टू स्टार्ट। जुलाई में फाइनली मैंने अपना फर्स्ट पोस्ट किया, इट हैड लाइक 100 लाइक्स, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज Okay. वेरी हैप्पी Yeah. टू से द जुलाई लीस्ट। में फर्स्ट पोस्ट में ही हाँ 100 likes. हाँ Amazing. I remember I had around 25 likes अच्छा on my first post. ओके But eventually it gets better, of course. इट गेट्स बेटर ऑफ Yeah. कोर्स। तो उस टाइम हुआ तो आई वाज वेरी हैप्पी। उसके बाद I started writing about GT and all the college experiences, सारी एडवाइस जो भी थी मेरे पास, अब जो भी जूनियर्स को देनी थी, I started writing about that। उसके बाद 0 to 10 के इन सितंबर हो गए मेरे। मैंने कहा वाओ क्या बात है, ये तो अमेजिंग हो गया कि इतनी जल्दी 10 के हो गए, मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। उसके बाद इतना पंप हो गई थी मैं कि अब तो लिखना है यार, अब तो लिखना कोई है। एडिक्शन लग जाते हैं ना एक माइलस्टोन कंप्लीट होने के बाद। एग्जैक्टली दैट हैपेंड। उसके बाद अक्टूबर केम, फिर तो अक्टूबर के बाद ना मेरे ऐसे हो गया एकदम से, तो मैं डिसहार्टेन की यार क्यों नहीं आ रहे, मतलब एंगेजमेंट क्यों नहीं आ रही, और मे बी आई एम नॉट कनेक्टिंग विद पीपल, कुछ तो आई एम डूइंग रॉन्ग। बट फिर आई गॉट डिमोटिवेटेड, तो उसी ईयर आई अपीयर फॉर कैट। ओके। तो उस टाइम ऐसे ब्रेक हो गया पूरा कि नवंबर, एंड वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है, तो वी ऑल नो कि लिंक्डइन एंगेजमेंट गेट स्टक। तो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी आई स्टॉप राइटिंग प्रॉपर्ली। उसके बाद फेब में रिज्यूम माई राइटिंग कि अब तो चलो ठीक है करना है, अगेन वी हैव टू डू। उसके बाद फेब, मार्च, अप्रैल में आई हिट 20 का, आई वाज अगेन हैप्पी कि चलो ठीक है ओके अब तो करना है। उसके बाद 20 to now 60 के हैपेंड सो फास्ट, मेरे को पता नहीं लगा। मतलब व्हेन आई लुक बैक there are no like strategies, you know, like, there are no hacks to your growth। कुछ unexpected post मेरे चले हैं जिन पे I just 10 मिनट्स में लिखे हैं मैंने वो पोस्ट, वो चल गए हैं। हाँ वो चल गए हैं, एंड जिसमें मैंने तो थॉट डाला है उनपे कोई एंगेजमेंट नहीं आती। इट्स लाइक दैट, कुछ पता नहीं लगता एल्गोरिथम का क्या चाहता है क्या नहीं। तो 20 के to 60 के हैपेंड बिटवीन अप्रैल टू नाउ, वी आर इन अक्टूबर। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट रहा मेरा। तो people ask कि you know कि क्या strategies थी, क्या hack था, when I look back there are no hacks यार। पता है कि अगर तुम ये कर लो तो engagement आ जाएगी, ये कर लो तुम, but one thing that worked for me was to connect with people। you know कि even if you're engaging with other people, जो लोग बोलते हैं कि engage करो, you know 15 minutes before posting and 15 minutes after posting, that works to a certain extent। but अगर तुम उन लोगों से बात ही नहीं कर रहे, अगर तुम, मतलब मेरा ऐसा था स्टार्टिंग में कि इसने कमेंट किया एंड आई स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन इन द कमेंट्स इटसेल्फ, तो आई गो टू डीएम्स एंड मैं मैसेज कर देती थी कि हाउ यू, हाउ इज इट गोइंग, तो एक कन्वर्सेशन हो जाती है, तो इनडायरेक्टली यू कनेक्ट विद दैट पर्सन। तो एक तुम्हारा पर्सनल कनेक्ट वहां से बन जाता है। तो एक थोड़ा वो होता है कि दैट पीपल कम एंड कमेंट्स ऑन योर पोस्ट, तो वहां से कनेक्ट तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स अ नॉन नेगोशिएबल टू कनेक्ट विद दोज पीपल, ठीक है। एंड ऑल्सो 2-3 छोटे छोटे हैक्स है, यू नो कि मैंने रियलाइज किया कि मेरी ना एक सर्टेन फोटोज चल रही है, मतलब 2-3 फोटोज में ना मेरी ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है, तो मैं ऐसा करती थी कि जिन पोस्ट पे मेरे को ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए ना, मैं उस फोटो के साथ डाल देती थी। तो पीपल स्टार्टिंग रिकॉग्नाइज यू कि हाँ ये तो वही है, वो मेमोराइज हो जाती है, हाँ मसल मेमोरी हो जाती है, हाँ पिक्चर आ जाती है। तो 2-3 फोटोज ना मेरी आई स्टार्टेड रियलाइजिंग वो चलने लग गई है, तो मैं वो डालने स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद वो एंगेजमेंट वाला तो है ही। तो ये सब छोटे छोटे हैक्स हैं जो आई स्टार्टेड डूइंग। तो हियर आई एम, पता भी नहीं चला कि कब 60 के हो गए। बट टेक्स एफर्ट, नो? takes effort definitely। Consistency is main thing, I think। Patience is another, but takes a lot of efforts। दिखने में लगता है कि you know 20k 50k 60k, मुझे नहीं लगता इतना easy चीज है, because when you have to stay consistent। because I remember कि अभी मैंने YouTube स्टार्ट किया 15 दिन पहले, एंड Instagram भी मैंने स्टार्ट किया था 3-4 महीने पहले, अभी LinkedIn को तो थोड़ा टाइम हो गया, बट तीनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ कंसिस्टेंट रहना विद अ जॉब, how do you do so मेरे को बताओ यार। मैं मतलब जब से मेरी जॉब स्टार्ट हुई है ना, आई एम स्टिल यू नो कोपिंग विद दैट कैंपस टू कॉर्पोरेट वाला ट्रांजिशन, क्योंकि अभी 3 वीक्स ही हुए हैं, तो अभी तो चलो वो मेरा भी वाला है। मेरा भी ये फेज आया था एक्चुअली, आई जॉइंड इन अक्टूबर लास्ट ईयर, ठीक है, तो 1 साल हो गया मुझे, ऑलमोस्ट 20 दिन में 1 साल हो जाएगा। तो मेरा भी वो ब्रेक आ गया था एक तरीके से, मतलब आई थिंक मैंने पोस्ट करना इतना कम कर दिया था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो 6 महीने जो उससे पहले थे, मई टू अक्टूबर, आई वाज
आई वुड नॉट से फ्री Hmm. बिकॉज मैं बस अपना USCMA के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी Okay. और दूसरा आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन ग्रोइंग माय लिंक्डइन, Okay. दैट्स ऑल आई वाज डूइंग. Hmm. बट वो होता है ना कि घर पे रह के यू हैव दिस कंफर्ट कि घर का Hmm. खाना मिल रहा है, Hmm. you know, you have the same bed, you don't have to worry Hmm. about anything else. Hmm. But when you are out of your hometown again for the Hmm. second time, Hmm. पहले I was for college and then job, Hmm. एंड उस टाइम पे फिर यू फील लाइक यार अब खाना क्या खाना है वो भी डिसाइड करना है. हाँ. आई लेजिट स्पेंड 1 hour ऑन जोमेटो कभी कभार डिसाइडिंग what different to have today. Hmm. And sometimes if you decide to cook, it's again like takes up a lot of time. Hmm. And then you have to do other things as well. कभी कभार ऑफिस का काम पेंडिंग रह जाता है, Hmm. तो वो सब चीज़ें सेटल होने में मुझे एक टाइम लगा. एंड फिर मुझे लगा कि थोड़ी बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू हैव अ पर्सनल लाइफ, Hmm. बिकॉज ऑफ कोर्स दैट डज नॉट मीन कि आप वर्क आवर्स में कुछ और कर रहे हो. वर्क आवर्स में सिर्फ काम पे ध्यान दो, उसके बियॉन्ड आप कुछ भी करो. Hmm. आई थिंक दैट रियली हेल्प्स फॉर मी बिकॉज आज अगर वीकेंड है तो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई ऑफिस, Hmm. आई एम डूइंग Definitely. what I really want to do in life. Right. तो वो चीज रहता है एक Oh, you want to do content creation full time? for life. Full time. Full time I So want to do looking that. forward, what have you thought of? See, now YouTube I'm growing. Yeah. Fingers crossed अगर ये हो जाए. और हो जाएगा. हो जाएगा You धीरे are धीरे. doing a great job. हो जाएगा. बाकी I'm also planning to you know grow my Instagram community Instagram. थोड़ा सा. Okay. Hmm. थोड़ा सा वो भी है. एंड मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट साइकोलॉजी में भी है. मे बी आई Oh. माइट गेट इनटू इट. Okay. So psychology and content, how would that आई डोंट be? नो कि कैसे है. शायद ये हाँ. मैं आउट ऑफ हॉबी कर रही हूँ अभी के लिए, पैशन भी एक कह लो. बट यू नो इट फील व्हेनेवर आई लाइक व्हेनेवर आई एम शूटिंग अ पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल विद यू टुडे, तो मेरे में एक अलग टाइप का ना एनर्जी आ जाता है व्हेन आई एम मीटिंग समवन टॉकिंग टू देम. तो आई थिंक वो बहुत पंप करता है मुझे. ठीक है. एंड इवन इफ आई एम जस्ट पोस्टिंग ऑनलाइन या फिर लिंक्डइन कह लो, इंस्टाग्राम कह लो, एक टाइम था लिंक्डइन ने शायद मुझे ये सब चीजें सिखाई है कि यार लाइक्स के बारे में सोचना बंद करो. सही बात है. आई थिंक दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस विद दिस कंसिस्टेंसी. बिकॉज अगर मैं ये सोचूं कि मैं लिंक्डइन बिना स्टार्ट करे ऐसे यूट्यूब इंस्टाग्राम शुरू कर देती, आई वुड हैव गॉन मैड ओवर लाइक्स कि यार नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. बिकॉज अभी वो फील नहीं आता कि क्योंकि हमने इतना पोस्ट कर दिया है, किसी पे आते हैं किसी पे नहीं आते, यू डोंट केयर आफ्टर अ पॉइंट. तो हाउ डिड यू कोप अप विद इट? लाइक्स एंड डिसलाइक तो नहीं होता है ऑफ कोर्स. यूट्यूब पे होता है यार, डिसलाइक आ जाए. हाँ YouTube पे होता है. ये YouTube पे ये भी शो होता है कि किसने डिसलाइक किया. नहीं. अच्छा. वो वो नहीं फिर होता. तो बीफ हो जाती भाई सबसे जो भी डिसलाइक कर रहे हैं. वही भाई सोचो अगर लिंक्डइन पे डिसलाइक आ जाए तो. वही एंड इवन वो पीपल भी शो रहे हैं जिन्होंने डिसलाइक किया है. ओके. आई डोंट थिंक सो वो आएगा कभी पीछे. हाँ. ओके. सो स्टार्टिंग में ना बहुत ही होता था कि यार लाइक्स नहीं आ रहे. क्योंकि ऐसा था कि 2 पोस्ट चल गए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग चल रहा, मतलब 1000 अबव लाइक्स. अब हो गया है, पहले नहीं था बिल्कुल भी, अब हो गया. बट बीच बीच में ऐसे कुछ पोस्ट होते हैं जिसमें 100 आते हैं, 200 आते हैं, 300 आते हैं. उसमें लाइक यार मैंने इतना एफर्ट डाला है इस पोस्ट में, क्यों नहीं आए? क्या व्हाट वेंट रॉन्ग एग्जैक्टली? तो या तो टाइमिंग्स, सब कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो बट स्टार्टिंग में ऐसा बहुत होता था यार. बट अब इट्स मोर अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल ऑनेस्टली. कि अब ना इट्स मोर अबाउट क्रेडिबिलिटी. कि स्टार्टिंग में पता लगता है कि 10K 20K 30K, मुझे 30K तक बहुत लगता था कि यार लाइक्स नहीं आ रही, एंगेजमेंट नहीं आ रही, कमेंट्स नहीं आए, रीपोस्ट नहीं हो रहे. बट उसके बाद ना इट्स मोर अबाउट क्रेडिबिलिटी. बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिनके 100K फॉलोअर्स है बट उनकी रेपुटेशन नहीं है, ट्रस्ट मी. ठीक है. और आई हैव सीन पीपल जिनके 30K है, 20K है, बट उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि दे आर बीइंग इनवाइटेड टू सो मेनी प्लेसेस, सो मेनी इवेंट्स, उनकी सब स्पॉन्सर्ड हो रहा है या जो भी है, मतलब वो तो एक अलग चीज है. बट उन क्रेडिबिलिटी मैटर्स अ लॉट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी नाउ. एंड आइडियाज कहाँ से आते हैं? Okay. I was anticipating this question and मैंने सोचा कि यार आइडियाज कहाँ से आते हैं, बट सीरियसली यार रैंडमली आते हैं. तो मैं ऐसे अगर हम ऐसे बैठे रहा कि चलो दिस वन इज आवर लिंक्डइन आवर और इसमें हम आइडियाज लिखेंगे, नहीं आएंगे. थ्रू आउट द डे आते रहते हैं एंड देन यू फील लाइक कि नोट्स ऐप में लिख लूं. हाँ, नोट्स, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू. मैं नोट्स ऐप में लिख लेती हूँ जब भी इट स्ट्राइक्स. मतलब
अगर कोई एक लाइन पॉइंटर भी आएगा ना तो आई राइट अबाउट इट, उसके बाद मे बी आई कैन एक्सपैंड इट ऑन इन लेटर, बट मैं वो लिख लेती हूँ उसी सेम टाइम। सेम सेम तो रैंडमली आता है, सो कोई वो नहीं है कि आइडियाज कहाँ से आते हैं, मेनी पीपल आस्क मी दैट एंड मेरे पास कोई आंसर नहीं होता है इसका ऑनेस्टली कि कहाँ से आते वही हैं। वही वही वो है ना, थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता हाँ, है, अवेयर observant रहना अवेयर होता रहना है। पड़ता है कि मुझे किसी बात से कुछ आइडिया निकालना है। Like sometimes what happens is even if I'm having a conversation with my family, I get so many ideas to post on LinkedIn, पता नहीं वो कहाँ से आ रहे होते हैं, maybe it's a social issue or something like that, but मिल जाते हैं ideas, right? हम लिंक्डइन वाले तो वो बदनाम है ना ये सोच के कि हर चीज से लेसन निकाल लेते हो तुम लोग। Yeah, मतलब वो even your college friends might have been saying this to so you. this is another question, but स्टार्टिंग में मैं मतलब स्टार्टिंग में यू आर लाइक ना कि हफ्ते में इतने पोस्ट करने हैं एंड आइडियाज कहाँ से लाऊं, उस टाइम में रैंडमली इतना ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी नहीं होती। विद टाइम आता है। हाँ, विद टाइम आता है। तो मैं ऐसे सोच रही थी यार क्या लिखूं क्या लिखूं, आई यूज्ड टू आस्क माय फ्रेंड्स कि तुम्हें कुछ क्वेश्चंस हैं, आई विल आंसर इट इन फॉर्म ऑफ अ पोस्ट। तो मैं ऐसे सब पूछती रहती थी। तो कॉलेज में इतनी वो होती थी ना कि यार तू क्या कर रही है लिंक्डइन, व्हाट इज लिंक्डइन गिविंग यू, एंड अब वो मुझसे पूछते, मैंने कहा ओके वेल आई हैव कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल, आई हैव टू आई हैव बीन टू सो मेनी मीटअप्स नाउ, तो एक वो कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा बूस्ट आता है जो तुम्हें कॉलेज लाइफ में नहीं आता। पता है, अब आई लुकिंग बैक एट माय जर्नी, आई नाउ थिंक यार पहले स्टार्ट करना चाहिए था। थर्ड ईयर क्यों कर दिया मैंने, पहले स्टार्ट। मुझे भी ऐसा ही फील आता है। हाँ, you started when after college? I started in 5th semester. अच्छा, March में। third year only। I think no, it's 6th semester. अच्छा, okay। Very late, I think। मेरी graduation से 3 महीने पहले I started, and उसके बाद से तो it's going good only। but हाँ, कभी कभार लगता है कि पहले शुरू करना चाहिए था। इनफैक्ट लाइक यू सेड, मैं भी ना एक साल से आई वाज रीडिंग पीपल्स कंटेंट कि एक्चुअल में करते कैसे हैं। लाइक ऑनेस्टली माय डैड इंट्रोड्यूस्ड मी टू लिंक्डइन। ओह या दैट्स अ न्यू हाउ। या आई डोंट नो कि कैसे हुआ। आई थिंक व्हेन आई हैव टू एडमिट इट कि जब मैं 12th में थी या फिर स्कूल में थी, आई कम फ्रॉम अ tier 3 टाउन। ओके, तो वहाँ पे इफ आई टेल यू DU, लिंक्डइन, इंटर्नशिप्स, जॉब्स, बिग फोर्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया नहीं है लोगों को वहाँ पे। बस ऐसी लॉस्ट है। लाइक यू आर फ्रॉम दिल्ली तो इसलिए थोड़ा एक्सपोजर है ना। बट व्हेन यू आर फ्रॉम tier 3 सिटी, है ना, सो इट्स बेसिकली अ टाउन ओनली। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता है। तो वहाँ पे लोगों के लिए बस वो एक डिग्री लेना इज, आई वोंट से इनफ, बट वहाँ पे थोड़े से थॉट्स वैसे हैं लोगों के। ठीक है, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द वर्ल्ड जो अब वहाँ पहुँच गया है। बिकॉज आई थिंक मेरे लिए DU आना भी वॉज अ रियली गुड डिसीजन। आई वुड से पहले मैं बहुत स्केप्टिकल की थी बिकॉज मैं 12th से पहले मैं कभी बाहर नहीं रही हूँ अपने घर से। सो इनिशियली इवन माय मॉम वाज स्कैर्ड कि यार दिल्ली में ऑफ कोर्स इट इज अ बिग सिटी, बट नाउ शी इज नॉट बिकॉज आई हैव बीन मैनेजिंग इट फॉर 2.5 years नाउ। तो वो चीज़ आ जाता है एक दैट, बट समथिंग दैट फेल्ट रियली गुड वाज कि एटलीस्ट मैंने स्टार्ट किया, बिकॉज अगर मैं वहीं रह जाती तो आई वुड नॉट हैव बीन हियर। तो इन चीज़ों से सब कभी कभी मोटिवेशन लेना पड़ता है कि ठीक है कहीं तो आ गए हैं। Talking to you, I'm realizing that I have to be grateful for so many things। मतलब हम इतनी भागा दौड़ी में लग जाते हैं ना, इतनी भागा दौड़ी, इतने ज्यादा हर्ड बिहेवियर है हमारा कि ये नहीं तो ये नहीं तो 12th कॉलेज, इतने स्टेप्स हमें कवर करने होते हैं ना, हम भूल जाते हैं यार ग्रेटफुल होना। टॉकिंग टू यू आई हैव रियलाइज्ड कि from where you are coming and where are you now, it's a great achievement। कभी कभी मुझे भी ऐसा लग रहा होता है कि like now I just talked about it, तो मुझे लग रहा है कि यार ठीक है आगे भी कर लेंगे। but sometimes क्या 2 ही दिन पहले की बात, I was just talking to my mom and मैं रो रही थी over the fact कि यार कैसे होगा कब होगा, but I forgot कि यार मैंने यहाँ तक भी तो कर ही लिया है ना। exactly जर्नी है यार, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। पता है कुछ लोग बोलते हैं कि यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक्सपीरियंस ले लो तब जाके यू विल हैव मोर टू शेयर, यू विल हैव मोर टू शेयर थ्रू योर एक्सपीरियंस। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अ पर्सन फ्रॉम BCG, तो मतलब he has experience work ex after his UG also and then IM and then BCG।
तो उनका एक अलग सेट ऑफ एक्सपीरियंस है Right, हमसे right. बिल्कुल. तो हम ऐसे लोगों को बोलते हैं कि स्टार्ट अर्ली बिकॉज वी रिपेंट नॉट स्टार्टिंग अर्ली. बट वो बोलते हैं कि यार मैं जाऊँ अभी खुश हूँ एंड अभी भी मैं स्टार्ट करूँ ना तब भी मैं खुश ही रहूंगा क्योंकि उनके अलग एक्सपीरियंस है टू शेयर. तो इट्स ऑन यू एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव यू नो कि कब कौन क्या स्टार्ट कर रहा है. एमबीए का सोचा है? आंटी क्वेश्चंस हियर. यार एमबीए का सोचा एज आई Like you सेड paid for CAT ना कैट last आई year. पेड फॉर कैट जो जितना मैंने सोचा था ना उस उतनी ऑब्वियसली फेवरेबल नहीं आई मेरी. Okay. तो अभी तो इन नियर फ्यूचर आई एम नॉट थिंकिंग. मैंने भी ब्रेक लिया था कैट के लिए, आई सॉ योर पोस्ट. but eventually I gave up on that thought. व्हाट हैपेंड? I mean मैंने ना सब कुछ बंद कर दिया था. अच्छा. लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब इनफैक्ट मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था फर्स्ट टाइम पे. लिंक्डइन भी बंद कर दिया था बिकॉज ना एक टाइम के बाद मेरे को लगने लग गया था कि अगर मैं फुल्ली फोकस्ड रहना चाहती हूँ आई हैव टू बी लाइक यू नो फोकस्ड ऑन इट. तो मुझे वो चाहिए पूरा कि ना डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट. बट फिर इवेंचुअली मुझे ये फील हुआ कि फायदा नहीं है कोई बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग लॉस्ट. मुझे अपने इवन दो आई वाज स्टडिंग एवरी डे है ना 2 घंटे सुबह देना 2 घंटे शाम को ऑफिस से आके भी देना बट इट स्टिल यूज टू फील लाइक कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में. एंड देन आई फाउंड इट कि कंटेंट इज व्हाट इज मिसिंग. एंड अगर मैं एमबीए भी करूंगी तो आई एम नॉट रियली प्लानिंग फॉर अ जॉब फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. या ओके. तो आई थिंक मेरे लिए उतना वर्थ इट डिसीजन नहीं है. आई थॉट कि ठीक है एक्सपीरियंसेस ही तो है शायद कंटेंट की जर्नी से भी आ सकते हैं. सही बात है. मतलब कुछ लोग ना बोलते हैं कि ऐसे बड़े लोग ही बोलते हैं कि अब इवन इफ यू डायरेक्टली गो टू वर्क एक्स ना आफ्टर योर यूजी तुम्हारे अंदर का स्टूडेंट मर जाएगा. तुम पढ़ नहीं पाओगे फिर तुमने ऐसे मनी एंड वो वाला तुम्हारा माइंड हो जाएगा. बट देन सम पीपल डू इट ना विद जॉब आल्सो. तो वही एक मेरा है कि इवन इन फ्यूचर इफ आई कंसिडर एमबीए तो वो स्टूडेंट अपने अंदर का जगाना पड़ेगा एंड दोनों को साथ साथ चलाना पड़ेगा. सबके बहुत ज्यादा ना वो है. आई हैव रिसीव्ड सो मेनी डिवाइसेस ना टिल हियर इन रिस्पेक्ट टू लिंक्डइन विद रिस्पेक्ट टू वर्कएक्स एंड एवरीथिंग. बट आई हैव रियलाइज्ड कि आई हैव टू फिल्टर दोज एडवाइसेस. सारी एडवाइसेस ठीक नहीं होती एंड तुम्हें अपने अकॉर्डिंग अगर सबसे एडवाइस लोगे तो तुम्हारा ओपिनियन विल बी लॉस्ट एग्जैक्टली. That would happen with you ना. तुमने MBA उसमें करा. That is I admit क्योंकि मेरे around I remember लास्ट नवंबर में जब वो था कैट का एग्जाम था ठीक है. तो माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स गिव दैट एग्जाम ठीक है. तो मैं उसके साथ गई थी वहाँ पे सेंटर तक बिकॉज ऑफ कोर्स उसके साथ कोई था नहीं. तो आई थॉट कि आई जस्ट वेट. क्या ही करना है वेट ही तो करना है. एंड उस टाइम तक मेरा फर्म डिसीजन था दैट आई एम नेवर डूइंग एमबीए इन माय लाइफ. ठीक है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. एकदम से लोगों के जून में पोस्ट आने लग गए दैट दे आर एडमिटेड टू आईआईएम अहमदाबाद दिस दैट. बट आई थिंक मैं उसी दौड़ में भूल गई कि व्हाट एग्जैक्टली इज माय पर्पस एंड व्हाट एग्जैक्टली इज समथिंग दैट आई वांट टू डू. आई थिंक वो क्विट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है सही टाइम पे जब तुम्हें रियलाइज हो जाए कि यस दिस इज समथिंग दैट्स नॉट वर्किंग फॉर मी एंड देन आई हैव टू क्विट. तो शायद मेरे लिए वो वर्कआउट कर गया. एंड इनफैक्ट इस चीज़ में मैं बोलूँगी मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इन वट एवर आई वॉन्ट टू डू. दे आर नेवर लाइक कि यार तू कैट क्यों छोड़ रही है तूने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया. दे आर नेवर लाइक इट. दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग मी कि ठीक है अगर तुझे ये करना है बट वट एवर यू आर डूइंग डू इट विद योर हार्ट. दिस इज आई थिंक उस चीज़ में थोड़ा प्रिविलेज है. I think it's too early. I think it's too early for me to say this, but हमारे सिर्फ कैंपस एंड कॉलेज में कंपैरिजन नहीं है. ऑफिस में भी बहुत कंपैरिजन है पता है. मतलब अभी तो मेरे को 3 वीक्स हुए हैं यार मैं ऐसे ज्ञान दे रही हूँ बट उनके कंपैरिजन अलग है. उनके कंपैरिजन प्रमोशन इंक्रीमेंट्स और इसके अराउंड है. पूरा एक अलग उनका चल रहा है कि वो वर्कएक्स से इस कॉलेज में गए एंड देन वो इसके साथ ये चीज भी कर रहे हैं. उनके कंपैरिजन ही अलग है. हर जगह कंपैरिजन है. नहीं वो तो है सबके अलग गोल्स है हर जगह पे. वर्क प्लेस लगा लो या टॉकिंग अबाउट एमबीए के कैंपस में भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर रहता होगा. एंड इवन इन एनी ऑफ द फील्ड वी कंसिडर कंटेंट कंसिडर कर लो या कुछ भी कंपैरिजंस कंपटीशन आई थिंक बहुत बढ़ गया है. बहुत ज्यादा एवरीवेयर बहुत ज्यादा. हम यहाँ कंपटीशन की बात ऐसे कर रहे हैं ऐसे वी कैन डू समथिंग अबाउट इट.
We can't. We can't. We can just focus on ourselves and do the हाँ. efforts. Hmm. That's all we can do now. Exactly. You remember you were supposed to meet me in November last year? हाँ. You were in your hometown, na? That time. November last year, something happened. I नहीं, think. you were about to join Yeah, their yeah, office. yeah. You said Correct, कि मैं correct. थोड़ा late आ नवंबर रही में हूँ. आऊंगी. हाँ, You हाँ. organize that LinkedIn meetup. हाँ, हाँ. Next time कब कर रहे हो? Because I'm here. Now you're here ना. Yeah. चलो अब तो बनती है फिर ऑर्गेनाइज करनी. Yeah. अभी मैं पीछे कर रही थी, but then some people वो MBA के लिए चले गए थे, हाँ, हाँ, हाँ. so that didn't work out well. How was it? क्या? LinkedIn meetup उस time पे. Was it your first one? जो मैंने ऑर्गेनाइज हाँ, करी हाँ, थी. हाँ. हाँ, it was good. मतलब अभी they were the first set of friends I met through LinkedIn and वो अभी तक है. मतलब एक होता है ना कि वो उस टाइम बना for हाँ, meetup हाँ, and then वो ग्रुप डेड हो गया. That's Right. not like that. अभी हम recently भी मिले थे, अच्छा, अच्छा. तो फिर वो चल गया. वो they Nice. were first set of friends जो मिले, तो they are like different. हाँ. वो तो चला. next time जब होगा count me in. Definitely. So wrap up करते हैं बच्चे का ठीक है. podcast को. Okay. So how did you feel podcast में throughout? Yeah. Was it your first offline podcast? Yes. Okay, so some podcasts feel like question and answer. तुम्हारा question चल रहा है, but this didn't feel like that. ऐसा लग रहा था कि हम friends हैं और हम catch up कर रहे हैं. बिल्कुल. And वो catch up बनता भी था क्योंकि बहुत time से पहले we connected, but वो catch up हो नहीं पा रहा था for some Right. reason. But it was very nice talking to you. Same for me. And it was great. Thank you. I hope कि ये video right audience तक पहुंचे. People who Definitely. want to approach, off-campus opportunities, are looking for tips and tricks to grow their LinkedIn. Of वो course, तो no मैंने better कुछ दी person. नहीं. वो तो मैंने कुछ दी नहीं. नहीं, जो दिया है वो perfect दिया है. I know that. Thank you, Vanshika. Thank you for joining. Thank you so much. Thank you guys for watching this episode until the very end. I'm sure it was such a long episode, and thank you for watching with such amazing patience. And I hope this video have reached the right kind of audience, and I hope that this video has added some valuable insights. You must have gained some knowledge through this video, so make sure you let us know through the comments below how did you find this episode and what kind of more episodes we should bring on this channel. And thank you again for watching this video. If you want to connect with me or Vanshika, I have put out our LinkedIn profile links in the description box below. Make sure to check it out and like, share, subscribe and comment under this video. Thank you.